Hey everyone, hope you all are doing good. Today we are going to cover chapter 3 of our marketing management course, and the book we are following is Marketing Management by Philip Kotler and Kevin Landkeller. So let's get started. Chapter 3 is all about collecting information and forecasting demand. I hope you guys would have seen marketing planning and strategies. Now let's look more from the external environment point of view, how we are going to collect information and for what purposes this collected information is going to be used. Marketing management decision is both an art and a science, as marketing environment is constantly presenting us new opportunities and threats. Hence, it is important to understand the importance of continuously monitoring, forecasting, and adapting environment. So the first topic of this chapter is components of modern marketing information system. Collecting information is not a one day task, और we cannot say that हम किसी certain time period में information collect करेंगे या फिर किसी particular area से ही information gather करेंगे. Rather we are open to collect information 365 days in a year. और बहुत सारी organizations जो अपनी information collect करती हैं वो real time basis पे करती हैं. There are three ways to collect information. The number one is from customer. लाइक हमारे पास फीडबैक सिस्टम्स वगैरह होते हैं जिनसे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. देन वी हैव एक्सटर्नल फैक्टर जिसमें हमारे पास डिफरेंट प्रायोरिटीज आ जाती हैं, लाइक्स डिसलाइक्स आ जाते हैं, लोग क्या प्रेफर करते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर वेदर, ट्रेडिशंस, रिलीजन्स एंड देयर अफोर्डिंग्स. And the third way to collect information is from competitors. वैसे तो competitors are threats to organizations, but yes, many organizations do collect their informations from their competitors too. और बहुत सारी organizations में तो intelligent team डिज़ाइन की जाती है जो कि हमारे जो competitors होते हैं उनकी information collect करती है. And all this collected information is kept into a central laboratory or repository. और कुछ organizations में CRMs यानी customer relationship management designed होते हैं जिसमें ये information gather हम store करते हैं and then make decisions accordingly. Concepts like big data have come into being to be able to take decisions that organizations want to take. कंपनी के जो मार्केटर्स होते हैं वो वैसे तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो हमारे पास मार्केट प्लेसेस में चेंजेस आ रही होती हैं उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए, और ये काम करने से मार्केटर्स को दो बेनिफिट होते हैं. एक तो इंफॉर्मेशन गैदर करने का डिसिप्लिन मेथड एंड द सेकेंड इज उनका टाइम जो कस्टमर से इंटरेक्ट करते गुजरता है एंड अपने कॉम्पिटिटर्स को ऑब्जर्व करते गुजरता है. कंपनीज विद सुपीरियर इंफॉर्मेशन अपनी मार्केट्स का बेहतर सिलेक्शन कर सकती हैं एंड देन वो फिर उस हिसाब से बेहतरीन ऑफर्स बिल्ड करती हैं एंड उन्हें एग्जीक्यूट करती हैं. एवरी कंपनी मस्ट ऑर्गेनाइज एंड डिस्ट्रीब्यूट कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टू इट्स मार्केटिंग मैनेजर्स. Then we have marketing information system. A marketing information system has information from people, from equipments, from procedures, from internal records, and even from the previous records of the organizations. Marketing information system is designed to support marketing decisions making. हम मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं लाइक सिस्टम जिसमें मार्केटिंग डेटा गैदर करते हैं, उसे स्टोर करते हैं, एनालाइज करते हैं एंड देन मैनेजर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंफॉर्मेशन नीड्स ऑन डेली बेसिस. मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के तीन कंपोनेंट्स होते हैं. द फर्स्ट इज इंटरनल रिकॉर्ड्स, देन मार्केटिंग इंटेलिजेंस एक्टिविटीज एंड थर्ड इज मार्केटिंग रिसर्च. लेट्स टॉक अबाउट देम वन बाय वन. The first to discuss under marketing information system is internal records. Internal records are anything and everything to do with sales information system, database and data mining and order to payment cycle. The order to payment cycle is considered as the heart of internal record. It emphasizes on हम किस तरह से order place करते हैं, कहाँ पे order place करते हैं and then किस तरीके से different departments, different units को involve करते हैं और किस तरह से invoice generate होते हैं, किस तरह से हम payment के लिए proceed करते हैं so that the order can be fulfilled. ये सब जो procedures हैं ये हमारे पास order to payment cycle में cover हो जाते हैं. सेकेंड इज सेल्स इंफॉर्मेशन सिस्टम. हम इसमें सेलिंग टारगेट डिज़ाइन करते हैं एंड वन मस्ट अचीव दोज टारगेट्स. इसमें हम सारी सेल्स फोर्स का डेटा एग्रीगेट करते हैं. अगर आप हायरार्की वाइज देखें तो टॉप लेवल पे हमारे पास जो टोटल सेल्स या मार्केट शेयर्स आ जाते हैं उन्हें हम सेल्स इंफॉर्मेशन सिस्टम में देख रहे होते हैं.
And then we have database and data mining. The output of sales information system and order to payment cycle will act as input for database and data mining. यहाँ हम ये देख रहे होते हैं कि हमारे पास पास्ट फ्यू मंथ्स में या फिर पास्ट ईयर में हमारा रिकॉर्ड क्या रहा है और फिर हम उस हिसाब से अपनी फ्यूचर डिमांड्स को एंटिसिपेट करते हैं और जो डिमांड्स हम प्रिडिक्ट करते हैं हम एंटिसिपेट करते हैं देन उस हिसाब से खुद को रेडी रखते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास जो भी सिचुएशन आती है उसके लिए हमारे पास उतना रॉ मटेरियल हो, उतने हमारे पास फंड्स हों ताकि उस वक्त हम उस डिमांड को फुलफिल कर सकें. एंड वन थिंग मोर, हम सेल्स स्टाफ की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी डेटाबेस में स्टोर करते हैं इन केस इफ़ वी नीड टू टेक एनी डिसीजन और एक्शन, सो वी कैन रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस. Then we have marketing intelligence. It is a set of procedures and sources used by managers to obtain everyday information about developments in the marketing environment. Environment scanning is a key to success. इस एरा में बहुत से फैक्टर्स डिफरेंट इंटेंसिटी के साथ डिफरेंट एरियाज को, डिफरेंट इंडस्ट्रीज को अफेक्ट कर रहे होते हैं. सो इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर वन टू बी अप टू डेट and be very much conscious about these factors. The internal record supplies result data, but the marketing intelligence system supplies happening data. In order to collect marketing intelligence, हमारे पास जो marketing managers होते हैं वो different books को, newspapers को, trade publications को read करते हैं, go through करते हैं, अपने customers, suppliers, distributors और different company के managers से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे coordinate करते हैं, उनसे interact करते हैं एंड ऑनलाइन मीडिया को मॉनिटर करते हैं. लाइक हमारे पास ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, ये एक अच्छा सोर्स है मार्केटिंग इंटेलिजेंस का. So now let's talk little about how companies improve the quality and quantity of their marketing intelligence. The very important factor for any organization is human resource. जितना ही एम्प्लॉय लॉयल होता है उतनी ही ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है. सो ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए कि अपनी सेल्स फोर्स को ट्रेन करें एंड उन्हें मोटिवेट रखना चाहिए कि वो न्यू डेवलपमेंट जो हमारे पास होती हैं उनको फिगर आउट करें. एंड ऑर्गेनाइजेशंस को ये भी चाहिए कि वो अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, अपने जो उनके रिटेलर्स या इंटरमीडिएटरी लोग होते हैं उनको भी मोटिवेट रखें एज दे आर द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंटेलिजेंस. एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स मस्ट बी हायर टू कलेक्ट इंटेलिजेंस एज जो हमारे पास एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है तो उनकी बात बहुत ऑथेंटिक होती है. And then organizations should establish industrial networks internally भी और externally भी. This will improve sales and लोगों की उनके products के बारे में reviews अच्छे हो जाएंगे, उनकी राय बेहतर हो जाएगी. And then there must be a panel for customer advisory to obtain maximum benefit. And lastly, organizations can also take advantage from the government related data resources. Then we have our topic collecting marketing intelligence on the internet. Marketing intelligence and the internet is something very interesting which include independent online forums, distributors or sales agent feedback sites, customers की complaint sites and customer review and expert opinion sites. Let's understand this with an example. जब हमें कोई भी प्रोडक्ट परचेज करनी होती है तो हम पहले तो इंटरनेट पे देखते हैं उसके रिव्यूज़. आइदर दे आर गुड और बैड, देन वी डिसाइड कि आइदर वी शुड गो फॉर इट और नॉट. डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी वेबसाइट्स में चैट रूम्स इंटीग्रेट किए होते हैं वेयर यू कैन आस्क योर क्यूरीज एंड टिपिकली विद इन फ्यू मिनट्स आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है. एंड देन देयर इज कम्युनिकेटिंग एंड एक्टिंग ऑन मार्केटिंग इंटेलिजेंस. अब तक जितनी बात की दैट वाज ऑल अबाउट कलेक्टिंग मार्केटिंग इंटेलिजेंस, बट द क्वेश्चन इज नाउ हाउ दिस मार्केटिंग इंटेलिजेंस इज यूज्ड. Marketing managers share this information and then employers or human resource process this information in such a manner that they maximize the benefit of the particular information. As I mentioned earlier, there are three components of marketing information system. We have discussed two, internal records and marketing intelligence, and the third one is remaining, that is marketing research. Marketing research is a systematic design, collection, analysis and reporting of a data or finding relevant to a specific marketing situation facing the company. Marketing research हम internally खुद within the organizations करवा सकते हैं and then वो एक्सटर्नली भी करवाई जाती हैं बाय हायरिंग सम एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स.
अगर ऑर्गेनाइजेशन कोई भी ऐसी सिचुएशन फेस कर रही होती है जहां आइडेंटिफिकेशन बिकम्स अ प्रॉब्लम, जब अपॉर्चुनिटीज़ को जो प्रॉपरली हाईलाइट नहीं कर पा रहे होते हैं, या फिर कोई भी ऐसा एरिया जिसे ऑर्गेनाइजेशंस थ्रेट कंसीडर कर रही होती हैं, तो उससे रिलेटेड स्टडी करवाई जाती है सो दैट दे कैन टेक सम वेरी गुड स्ट्रेटेजिक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिसर्च एंड रिपोर्ट. Moving towards the next topic, that is analyzing the macro environment. The very first thing in macro environment is needs and trends. There are three categories for this. The very first is fad. It is the unpredictable and short-lived. Fad is something or some product or idea or service जो certain time period के लिए तो बहुत ज़्यादा popular होती है, लेकिन फिर जल्द ही people used to ignore them. And then there is trend. Trends are more predictable and durable than fad. It gives a future insight, which means current trends से हम future trends को determine कर सकते हैं. And after that we have mega trends. Mega trends are the large social, economic and political and technological change. It is slow but can last up to 7 to 10 years. And then there is identifying major environmental forces, जिसमें हमारे पास different environmental forces होती हैं like demographics, economic, social, cultural, natural, technological and political legal factors. Let's talk about them one by one. The very first is demographic environment. Demography is a study of human population, size, density, location, age, gender, race, occupation and other statistics, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन ग्रोथ. 19% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है हमारे पास विद इन द एज ब्रैकेट ऑफ 15 to 24 ईयर्स है, और पाकिस्तान में ये 30 to 40% है. यंग कंज्यूमर्स की डिमांड को टैकल करना, उनको टारगेट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कि उनकी डिमांड जो है काफ़ी क्विकली चेंज होती हैं. देन वी है पॉपुलेशन एज मिक्स, जिसमें हमारे पास प्री स्कूल चिल्ड्रंस होते हैं, स्कूल चिल्ड्रंस आते हैं, टीन एजेस, यंग एडल्ट एजेस बिटवीन एज ग्रुप 20 to 40, एंड देन देयर आर मिडिल एज एडल्ट्स जो एज ब्रैकेट 40 to 65 में आते हैं. देन वी हैव ओल्डर एडल्ट्स जो 65 एंड ओवर होते हैं. कुछ कंट्रीज़ में यंग पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, कुछ में ओल्ड ज़्यादा होती है, तो ऑर्गेनाइजेशंस को उस हिसाब से अपने मार्केट को टारगेट करना होता है. एंड वी हैव एथनिक ग्रुप्स, जिसमें हम रीजनल ग्रुपिंग कर सकते हैं. लाइक अगर पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें तो हमारे पास पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान वगैरह हैं, तो इनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो जाती हैं, फिर उस हिसाब से हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ती है. देन वी हैव एजुकेशनल ग्रुप्स. एजुकेशनल ग्रुप्स में भी डिफरेंट प्रेफरेंसेस होती हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशंस आर फेसिंग चैलेंजेस टू मार्केट देम इन एजुकेशनल सेक्टर्स. एंड देन वी हैव हाउस होल्ड पैटर्न्स, इसमें हम ये देखते हैं कि नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स कितने हैं. लाइक अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो उस हिसाब से प्रोडक्ट स्मॉल क्वांटिटी में कोई बाय नहीं करेगा, उनके लिए बल्क या वैल्यू पैक होना चाहिए. इसी तरह के अगर हॉस्टल्स वगैरह का एरिया है तो वहाँ पे हमारे पास वैल्यू पैक या लार्ज पैकेजिंग नहीं होती, वहाँ पे हमारे पास फिर स्मॉल पैकेजिंग आ जाती है. तो ऑर्गेनाइजेशंस को अपने मार्केट सेगमेंट्स को उस तरह से टारगेट करना पड़ता है. एंड देन सेकेंड एनवायरमेंटल फैक्टर की बात करें तो वो हमारे पास आ जाता है इकोनॉमिक एनवायरमेंटल फैक्टर, जिसमें हमारे पास अवेलेबल परचेजिंग पावर आ जाती है डिपेंडिंग ऑन द कंज्यूमर साइकोलॉजी, उसकी इनकम की क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी क्या सेविंग्स हैं, क्रेडिट या अवेलेबिलिटी क्या है. अगर हम यंग कंज्यूमर्स की बात कर लें तो उनमें सेविंग ट्रेंड बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू हमारे पास जो मिडिल एज एडल्ट होते हैं या फिर ओल्डर एडल्ट होते हैं. एंड देन वी हैव सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट. इट इज़ समथिंग जिसमें सोसाइटी एंड कल्चरल दोनों के फैक्टर्स आ जाते हैं. एंड इसमें 6 व्यूज़ कॉमनली आते हैं. व्यू ऑफ आवर सेल्फ एंड व्यू ऑफ अदर्स आ गया, व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गया, देन वी हैव व्यू ऑफ सोसाइटी, व्यू ऑफ नेचर एंड एट लास्ट व्यू ऑफ यूनिवर्स. ऐसी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं प्रोड्यूस करनी चाहिए जो नेचर को या ह्यूमैनिटी को किसी तरह से हार्म करें. सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट में हमारे पास डिफरेंट बिलीव्स एंड वैल्यूज़ भी आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले हमारा जो है कोर बिलीव एंड वैल्यू है जो हमारे पेरेंट्स से चिल्ड्रंस में पास हो जाती है, या फिर सोशल इंस्टीट्यूट से हम री इन्फोर्स करवाते हैं. लाइक स्कूल हो गया, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हो गए हमारे पास, या किसी बिजनेसेस या गवर्नमेंट की तरफ से भी री इन्फोर्स्ड हो जाती हैं लोगों में. एंड देन वी हैव सेकेंडरी बिलीव एंड वैल्यू विच आर मोर ओपन टू चेंज. And then there is subcultures. Subcultures are basically groups with shared values, beliefs, preferences, and behaviors emerging from the special life experience or circumstances.
एंड देन देयर इज़ नेचुरल इन्वायरमेंट, जिसमें हम ये देखते हैं कि नेचर को कम से कम अफेक्ट किया जाए। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं डेंजरस मटेरियल रिवर्स एंड कैनाल्स में डंप कर देते हैं एंड दिस इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द नेचर। स्मोक जो हमारे प्रोसेस से प्रोड्यूस होती है वो भी नेचर के लिए बहुत डेंजरस है। इट अफेक्ट द ओजोन लेयर डायरेक्टली। आजकल तो इन्वायरमेंटल रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस एंड गवर्नमेंट लेवल पे भी कुछ स्टेप्स लिए गए हैं कि यूज़ योर वेस्ट इन सच अ वे कि नेचर को कम से कम नुकसान हो। इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस एंड ISO सर्टिफिकेशंस भी मौजूद होती हैं टू इंश्योर कि नेचर को ज़्यादा हार्म ना किया जाए। एंड देन देयर कम्स टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। सऊदी अरब के लिए कहा जाता है कि उनका फ्यूल कंजप्शन जर्मनी से ज़्यादा है और वो इसका मेजर जो पोर्शन है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में यूज़ करते हैं। बट नाउ दे आर मूविंग टू द सोलर एनर्जी पैनल एज एन अल्टरनेटिव फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी टू सेव फ्यूल। Marketers should monitor few technology trends. And number one is accelerating the pace of change as technology is getting improved day by day. Second हमारे पास है कि हमारे पास unlimited opportunities हैं for innovation. And third is research and development spending. Companies are now focusing on development as opposed to the research side. And these technology trends are very fruitful and beneficial for the organizations. And the last factor we have political legal environment, which is concerning about government agencies, laws and pressure groups that influence organizations and individuals and make sure कि जो rules and regulations government की तरफ से पास किए गए हैं उनकी enforcement हो। Like in Pakistan, we have Security Exchange Commission of Pakistan, PEMRA, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ओगरा, जो इंश्योर करते हैं कि उनके एरियाज़ में जो हमारे पास गवर्नमेंट लॉज एंड लेजिस्लेशन है उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो। एंड देन वी हैव स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप जो कि ऑर्गेनाइजेशंस में अगर एम्प्लॉयज़ के साथ कुछ रॉन्ग हो रहा है तो वो कंट्रोल करती हैं। अगर इन्वायरमेंट के हिसाब से कोई चीज़ ऊपर नीचे हो गई है तो वो कंट्रोल करती हैं। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंट्रोल नहीं कर रही है तो वो चेक करते हैं। एंड वी हैव हलाल सर्टिफिकेशन टू, जिससे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में होती है टू मेक श्योर कि हराम इंग्रेडिएंट ना यूज़ किया जाए। एंड द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज़ फोरकास्टिंग एंड डिमांड मेजरमेंट। लेट्स टॉक अबाउट मार्केट, इट्स साइज, ग्रोथ, प्रॉफिट पोटेंशियल एंड टारगेट। जैसे अभी हमने बात की थी कि 19% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड फॉल विद इन द एज ब्रैकेट ऑफ 15 to 24 ईयर्स। डिफरेंट एरियाज़ में इनका क्या रेशो है और कौन से प्रोडक्ट्स पे ये लोग स्पेंडिंग करते हैं और जिन प्रोडक्ट्स पे ये स्पेंडिंग करते हैं, हाउ दीज ऑर्गेनाइजेशंस कैन इनोवेट दीज प्रोडक्ट्स टू कीप दीज पीपल परचेजिंग एंड स्पेंडिंग ऑन देयर प्रोडक्ट्स। Pakistan is considered as young country. 30% of the population is young and it is also estimated that it will reach to 50% by 2030. For a nation, it is considered as beneficial and very positive कि mostly population young है, as it is considered as the strength for the nation. So the point is how to regulate and channelize these age group. We have different educational sectors जो इन लोगों को market needs and requirements के हिसाब से train कर रहे हैं। अभी पहले तो we have hardly 15 to 16 universities in the Pakistan, and by the passage of time private universities came up like LUMS, Lahore University of Management Science, जो students को market requirement के हिसाब से train कर रही है। And the next point is growth. As I discussed earlier, by 2030 young population of Pakistan will be 15%. तो उस हिसाब से organizations डिज़ाइन की जाएंगी कि किस तरह से हम इनसे मैक्सिमम बेनिफिट हासिल करें। एंड देन वी हैव प्रॉफिट पोटेंशियल। इट एम्फेसाइजेज ऑन ऑर्गेनाइजेशंस को कितना रेवेन्यू जनरेट करना है, किस तरह से करना है, मार्केट की क्या नीड्स हैं और किस तरह से वो पिच करें कि उन नीड्स को कि उनका जो मार्केट शेयर है वो इम्प्रूव हो। एंड वंस मार्केट शेयर इज इम्प्रूव्ड देन प्रॉफिटेबिलिटी विल ऑल्सो बी इम्प्रूव्ड। The next factor we have is market types. The very first is potential market. इसमें कस्टमर कंज्यूमर तो मौजूद होते हैं पर किसी ने उन्हें एजुकेट नहीं किया होता कि they can make use of this product. These consumers have sufficient level of interest, but their interest is not enough to define a market unless they also have a sufficient income and access to the product. एंड सेकेंड इज़ अवेलेबल मार्केट। ये मार्केट अवेलेबल तो होती है पर हम इसे टारगेट नहीं कर रहे होते हैं। और यू कैन कंसिडर दिस एज अ सेट ऑफ कंज्यूमर्स हु हैव इंटरेस्ट, इनकम एंड एक्सेस टू द पर्टिकुलर ऑफर।
एंड नंबर थर्ड इज टारगेट मार्केट. टारगेट मार्केट इज लाइक किन लोगों के लिए प्रोडक्ट स्पेसिफिक प्रोडक्ट बना रही हैं ऑर्गेनाइजेशंस, और जिनके लिए बना रही हैं तो ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट फोकस उस सेगमेंट में और उस एज ग्रुप में मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हों. एंड एट लास्ट वी हैव पेनिट्रेटेड मार्केट. जब मार्केट ऑलरेडी मौजूद हो और आप अपने प्रोडक्ट्स को इतने इंटेलिजेंटली हाईलाइट करें, इतने इंटेलिजेंटली पिच करें कि आपके कॉम्पिटिटर का जो कस्टमर है वो भी आपसे प्रोडक्ट परचेज करें. आप सेम मार्केट में होकर भी अपनी प्रोडक्ट को इस तरह से इनोवेट करते हैं, इस तरह से हाईलाइट करते हैं कि आपके पास कस्टमर आएगा ही आएगा. The next is the measure of market demand. Companies can prepare as many as 90 different types of demand estimates for 6 different product levels, 5 space levels, 3 time periods. Each serves a specific purpose. जब हम बात करते हैं टाइम लेवल की तो शॉर्ट रन में हमारे पास लेस देन 1 ईयर लास्टिंग डिमांड्स आ जाती हैं, मीडियम रन में 1 to 3 और 1 to 5 ईयर्स वाली डिमांड्स आ जाती हैं, एंड 3+ एंड 5+ ईयर्स को हम स्ट्रेटेजिक टाइम फ्रेम या लॉन्ग रन में कंसीडर करते हैं. प्रोडक्ट लेवल पे हमारे पास 6 डिफरेंट लेवल्स होती हैं. फर्स्ट इज प्रोडक्ट आइटम सेल्स, सेकंड इज प्रोडक्ट फॉर्म, थर्ड इज प्रोडक्ट लाइन, फोर्थ इज कंपनी सेल्स, फिफ्थ इज इंडस्ट्री सेल्स, एंड लास्ट इज ऑल सेल्स. एंड इन स्पेस लेवल वी हैव कस्टमर एज फर्स्ट, सेकंड इज टेरिटरी, थर्ड इज रीजन, देन कंट्री, एंड देन वर्ल्ड. Organizations estimate their current demand by multiplying potential buyers, and which refers to the customers जो market में होते हैं but for some reasons वो product buy नहीं कर रहे होते. They have income to purchase but maybe they are unaware of the product or using competitors product कि वो आपकी product purchase नहीं कर रहे होते. तो we multiply this potential buyer with the average purchasing quantity and with average price, and the resultant is termed as total market potential. और इस मार्केट पोटेंशियल को हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कितने लोग मार्केट में ऐसे हैं जो आइदर अनअवेयर ऑफ प्रोडक्ट हैं, या फिर आइदर दे आर यूजिंग कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट, और आइदर दे आर यूजिंग एनी सब्स्टिट्यूट. सो लेट्स टारगेट दोज पीपल्स टू गेट द मैक्सिमम एडवांटेज फ्रॉम द मार्केट. एंड देयर वी हैव एरिया ऑफ मार्केट पोटेंशियल. देयर आर फ्यू कंट्रीज जहाँ पे स्नोफॉल या कोल्ड वेदर है वहाँ प्रोडक्ट डिफरेंट होगा. जो ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं वहाँ प्रोडक्ट डिफरेंट होगा. इन पाकिस्तान वी हैव फॉल सीजन, सो वी हैव प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द सीजन्स. Some organizations consider whole world as a market like Pepsi and McDonald's. जब हम पूरे वर्ल्ड को एज अ मार्केट कंसीडर करते हैं तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कंसीडर दिस कि जहाँ से हमें रॉ मटेरियल मिल रहा है हम वो वहाँ से ले जाकर कहीं और प्रोसेस करें, या फिर जहाँ से मिल रहा है हम वहाँ ही कोई फैक्ट्री वगैरह लगाकर उसे प्रोसेस करें और फिनिश गुड बना दें वहीं पे. देन वी हैव एस्टिमेटिंग फ्यूचर डिमांड्स, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन. बायर्स इंटेंशन इज़ बेसिकली अ मोटिवेशन, एंड इसे डिटरमाइन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस कंडक्ट पीरियोडिक सर्वे ऑफ कंज्यूमर्स बाइंग इंटेंशन. These survey ask consumers about their present and future personal finances and expectations about the economy. Then we have sales force opinion. क्या ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, क्या डेमोग्राफिक्स चेंज हो रही हैं, क्या कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन की कमी है, क्या एडवर्टाइजमेंट कैंपेन सही नहीं कर पाई ऑर्गेनाइजेशन, क्या हम किस तरीके से कौन कौन से कंपोनेंट्स को इन्हेंस करें कि हम जो है ना अपनी सेल्स इम्प्रूव करें. ये सारी बातें ऑर्गेनाइजेशंस को सेल्स फोर्स ओपिनियन बताते हैं. दे टेल ऑर्गेनाइजेशंस हाउ दे कैन बी मोर सक्सेसफुल इन मार्केट बाय कंसीडरिंग दीज फ्यू थिंग्स. And then there is expert opinion. In this we obtain forecast from the experts like dealers, distributors, suppliers, or by hiring expert to estimate demands. Organizations also buy forecast from the well-known economic forecasting firms. ये लोग बहुत keenly market को observe करते हैं and then suggest organization to consider changes जो market में exist कर रही हैं, and for these changes we need to align the products accordingly. एंड देन देयर इज पास्ट सेल एनालिसिस. लास्ट सीजन लास्ट मंथ क्या सेल होती है उससे भी एंटिसिपेट करते हैं फ्यूचर डिमांड्स को.
And then we have market test method. A direct market test can help forecast new product sales or establish product sales in a new distribution channel or territory. This was all about collecting information and forecasting demands. So the sum up is जितनी इन्फॉर्मेशन की एक्यूरेसी होगी उतनी ही ज़्यादा डिमांड्स को अच्छे तरीके से फोरकास्ट कर सकते हैं. एंड बाय डूइंग दिस हम ना सिर्फ एग्जिस्टिंग यूज़र्स को ब्रांड लॉयल करते हैं बल्कि जो पोटेंशियल कंज्यूमर्स होते हैं मार्केट में हम उनको भी टारगेट करते हैं. दैट्स ऑल. थैंक यू फॉर योर टाइम.